السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی بہار بورڈ کے 10ویں کلاس کے اندر اردو پڑھنے والے بچے ہیں، آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل ممتاز جینیس اسٹڈی اینڈ موٹیویشنل پہ آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم لوگ اردو کے چیپٹر 1 شروع کرنے والے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے شبنم کمالی۔ سب سے پہلے جتنے بھی بچے اردو پڑھنے والے ہیں ان کو میں چیپٹر کو لائن بائی لائن کر کے پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ چیپٹر کا نام ہے شبنم کمالی۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے تھا۔ یہ کوشچن بھی پوچھتا ہے کہ شبنم کمالی کس ریاست کے رہنے والے تھے، تو آپ آنسر یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ شبنم کمالی صوبہ بہار کے رہنے والے تھے۔ ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ کو۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ یہ بھی سوال کے اندر پوچھتا ہے کہ شبنم کمالی کا اصلی نام کیا ہے، تو شبنم کمالی کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی تخلص ہے۔ یہ بھی سوال کے اندر پوچھتا ہے شبنم کمالی کے اندر شبنم کیا لفظ ہے، تو شبنم کمالی تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ یعنی یہاں بھی 2 سوال بن جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، تو 22 جولائی 1938 کو۔ کہاں ہوئی؟ پوکھریرا میں۔ کون سے ضلع کے اندر؟ تو سیتامڑھی ضلع کے اندر۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی ہی کا تخلیق ہے۔ یہاں تک میری بات مکمل ہو چکی۔ اب اس کے اندر کیا سوال بنتا ہے کہ شبنم کمالی کے نعتیہ شاعری کے 3 مجموعوں کا نام لکھیے۔ آپ 5 میں سے کسی بھی 3 کا نام لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی۔ انوار عقیدت لکھ دیں، ریاض عقیدت لکھ دیں، ضیاء عقیدت لکھ دیں، یا فردوس عقیدت، جو بھی آپ کے من پسند ہو اس کو آپ لکھ دیں۔ اب اس سے نیچے چلتے ہیں کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کر دی۔ یعنی صاف لفظوں میں یہ کہیے کہ دین اور تبلیغ کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے صرف کر دیا۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ یعنی اللہ کے بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے عاشق تھے، بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور واہلانہ جذبات کا اظہار کیا۔ یعنی جہاں بھی تقریر کرتے دینی متعلق باتیں کیا کرتے تھے، شعر جہاں بیان کرتے اللہ کی تعریف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اندر ہی بیان کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں ہم لوگوں کی چیپٹر سے مکمل ہو چکی، ایک ایک لائن کر کے ہم لوگ پڑھ لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس میں سے جو بھی سوالات ہماری کتاب کے اندر دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ درخشہ اردو درجہ 10 کے مختصر ترین سوالات کے طرف چلتے ہیں، یعنی جو آبجیکٹیو لیول کے سوالات ہیں اس کے طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1 سوال، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ یہ سوال کے اندر بھی آیا تھا، ہم لوگ پڑھتے ہوئے وہیں پہ جو ہے ہم لوگ دیکھ لیے تھے۔ جواب لکھنا ہے شبنم کمالی 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے۔ پھر 2 نمبر سوال ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، تو اس کے جواب لکھنا ہے کہ جناب شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ تیسرا سوال کرتا ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، تو شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 کو ہوا۔ ایک اور سوال اس کے اندر ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کی تخلیق یعنی کائنات کو کس نے بنایا، تو جواب کائنات کی تخلیق خدا نے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو بنایا۔ یہاں سے ہم لوگوں کے مختصر ترین سوال، جو سب سے چھوٹے لیول کے جو سوال ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور بھی سوال کرتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ
शबनम कमाली किस रियासत के रहने वाले थे, तो अभी मैं बताया हूँ कि शबनम कमाली सूबे बिहार के रहने वाले थे। ये सवाल मुख्तसरन तरीन सवाल जो किताबों के अंदर दिया हुआ है, एक अपने पास से मैं इसके अंदर ऐड कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसको खूब अज़बर कर लें, खूब याद कर लें, आपके इम्तिहानात के अंदर कामयाबी में ये आपके मददगार साबित होगा। अभी हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात पढ़े, एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव और एक हो गया 1 नंबर 2 नंबर का, ये सब जो सवालात करता है, जो लिखने वाला रिटन पेपर होता है उससे कुछ सवालात उठाता है। तो अब मुख्तसर सवालात जो लिखने वाले हैं उसके तरफ देखते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। आप इसको पढ़िएगा तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन इसको लिखने वाले सवालात हैं। मुख्तसर तरीन के मतलब हो कि सबसे छोटे, उससे थोड़े से बड़े मुख्तसर सवालात। तो अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि हम्द किसे कहते हैं। 5 जुमलों में हम्द के बारे में लिखिए कि आपकी किताब के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसके अंदर जो है 5 जुमले उसके बारे में लिख दीजिए। तो जवाब क्या है कि हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ़ है। ये सबसे आसान है कि हम्द कहते किसको है। हम्द के लुग़वी माना लुगत के अंदर खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। इसी तरीके से हम्द के 5 जुमलों के, हम्द के बारे में 5 जुमले लिखना है, तो उसके बारे में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे कि उर्दू शायरी में दूसरे सिन्फ के तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है। जैसे इस तरीके से गज़ल है, इस तरीके से और भी बहुत सारे किस्में हैं शायरी के, तो उस शायरी के किस्मों में से एक किस्म जो है हम्द भी होता है, जिसके अंदर अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबाह आजमाई की है। सारे के सारे जितने भी शायर हैं सब ने हम्द के ऊपर जो है अपनी अपनी शायरी बयान फरमाई है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। देखिए इस लाइन में लिखा हुआ जवाब के अंदर कि उर्दू के अंदर कोई ऐसा शायद ही शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक और बरकत वाला समझा जाता है। यही आपका जवाब है। आप बड़े सुकून से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस जवाब को जो है अपने कॉपी के अंदर दर्ज कर सकते हैं, और दर्ज करने के बाद इम्तिहानात के अंदर इसको देख कर एक बार जाएँ, ताकि आपके इम्तिहानात की कामयाबी में जो है किसी तरीके से कोई रुकावट पैदा ना हो। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 के तरफ कि हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ करेंगे, उसके बाद फ़र्क जो है बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। जवाब, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए। मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गाने दीन और औलिया की तारीफ़ और फजीलत का बयान हो। हम्द में अल्लाह की तारीफ़ और मनक़बत में बुज़ुर्गाने दीन, दीन के जो बुज़ुर्ग लोग, नेक लोग हैं, जो वली लोग हैं, उनकी जिन शायरों के अंदर, जिन नज़मों के अंदर उनका बयान हो, उसको मनक़बत कहते हैं। और कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बादशाहों का, बड़े बड़े अफसरों का, हाकिमों का की तारीफ़ की जाए या तारीफ़ का बयान हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कसीदा कहते हैं। फिर देखिए उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बादशाह या हुक्मरान की तारीफ़ का बयान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा। इन सब में आप जो है तारीफ़ करके फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ। शबनम कमाली की 3 शेरी मजमूए के नाम बतलाइए। ये सबक पढ़ाते दौरान भी मैं बता चुका आपको कि शबनम कमाली के हमारे निसाब में जो किताब है उसके अंदर 5 शेरी मजमूओं का नाम दिया हुआ है, जिसमें से सवाल के अंदर आपके 3 शेरी मजमूआ ज़रूर पूछता है आपके सवालात के अंदर। तो इस सवाल के अंदर भी वही किया है कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बतलाइए। तो जवाब शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूआ ये हैं: अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और फिरदौस अक़ीदत। ये 3 हैं। आप 3 लिख देंगे, आपके नंबरात मुकम्मल मिलेंगे। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 है, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। इससे पहले आया हम्द, मनक़बत और कसीदे में बुनियादी फ़र्क पूछा था। अब इसमें पूछ रहे हैं हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो जवाब लिखिएगा, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, तौसीफ़ हो। दोनों में अलग फ़र्क है। हम्द में अल्लाह की तारीफ़ होती है और नात के अंदर जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। नोट, बुनियादी फ़र्क यही है कि हम्द में खुदा की तारीफ़ होती है, जबकि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है। ये आपके 4 सवालात थे। चारों सवालात मुकम्मल हो चुके। मुख्तसर
सवालात के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी के अंदर नोट कर लें। ये सारे के सारे सवालात जिस नहज और जिस तरीके पे लिखा गया है, अगर इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि आप जो है इंशाअल्लाह जो है बिहार बोर्ड के अंदर अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। और साथ ही चलते चलते आपसे ये भी कह दिया जाए कि जो मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल है, इसमें जो है अभी शुरुआती दौर का वीडियोस डाला जा रहा है। आप सभी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है उनके पास पहुँचे और वो उससे फ़ायदा उठाएं।